السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آج کا ٹاپک ہے فدیہ ادا کرنے کی اجازت کس شخص کو ہے۔ جی ہاں، فدیہ نکالتے ہیں، کون کون فدیہ دے سکتا ہے۔ اس چینل پر رمضان کے مسائل کو آسانی سے سکھایا جاتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فدیہ ادا کرنے کی اجازت کس شخص کو ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متن اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص شوگر بلڈ پریشر اور گردے کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ہاں، جیسے کہ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اسی کے بارے میں ہے۔ اس کے ایک روزے کا فدیہ یہ کیا ہوگا اور پورے رمضان کے روزوں کی فدیہ کی کتنی رقم بنتی ہے؟ جی ہاں، پورے رمضان کے روزے کی فدیہ کی رقم کتنی بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ روزہ کی بجائے اس کا فدیہ ادا کرنے کا حکم شیخ فانی کے لیے ہے، مریض کے لیے نہیں۔ جی ہاں، کس کے لیے ہے؟ مریض کے لیے نہیں ہے، شیخ فانی کے لیے ہے۔ شیخ فانی وہ شخص ہے کہ جو بڑھاپے کے سبب اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ حقیقتاً روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ جی ہاں، وہ شخص ہو جو بڑھاپے کی طرف ہو اور روزہ نہ رکھنے کی اس میں طاقت نہ ہو، کمزور ہو، نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ لگاتار نہ منفرق۔ جی ہاں، نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ لگاتار نہ ایک ایک دن کر کے طور پر، اور نہ ہی آئندہ زمانے میں ان کے لیے فدیہ ہے۔ میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، چنانچہ نقایہ میں ہے، یعنی بوڑھا شخص جو کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ جی ہاں، وہ کیا ہو؟ روزہ نہیں رکھے گا۔ شرح نقایہ میں ہے، یعنی شیخ فانی کو فانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فنا کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جی ہاں، فنا کے یعنی خدا سے ملاقات کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، یا اس لیے کہ اس کی قوت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہونا بھی روزے چھوڑنے کا عذر نہیں۔ جی ہاں، بیماری میں مبتلا ہونے کے روزہ چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ بہت سے شوگر و گردے کے مرض والے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، جن کو بیماری ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، البتہ مرض اتنا شدید ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، تو نا حصول صحت اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ جی ہاں، اس وقت وہ روزہ کو قضا کر سکتا ہے، اور اس کے بدلے اگر مسکین کو کھانا دے تو مستحب ہے، تاہم یہ کھانا اس کے روزے کا بدلہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، وہ کھانا کھلانا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا، اس سے روزہ ختم نہیں ہوگا۔ روزہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قضا کرنا پڑے گا، بلکہ صحت پر ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ جی ہاں، جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اس کی قضا کیا ہے؟ لازم ہے۔ ہاں، البتہ اگر اسی مرض ہی کی حالت میں
बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गया और उस बुढ़ापे की वजह से फ़ी अलहाल या आइंदा रोज़ा रखने की इस्ताअत न रहे तो ऐसा शख्स शेख फ़ानी है। ऐसा शख्स क्या है? शेख फ़ानी है। अब उस सूरत में क़ज़ा शुदा रोज़ों का फ़िदिया अदा करे। जी हाँ, ऐसी सूरत में क्या करे? अब वो जितने भी रोज़े छूटे हैं उसका फ़िदिया अदा करे। और हर एक रोज़ा का फ़िदिया या सदका फ़ितर की मिक़दार के बराबर है। किसके मिक़दार के बराबर है? सदका फ़ितर के। और एक सदका फ़ित्र की मिक़दार तकरीबन 1920 ग्राम यानी 2 किलो में 80 ग्राम कम गंदम आटा या उसकी रकम। जी हाँ, गेहूँ या आटा या उसकी रकम है। और अगर शेख फ़ानी की तारीफ़ में दाखिल न हो तो वरसा को क़ज़ा शुदा रोज़ों के बदले में फ़िदिया अदा करने की वसीयत करे। जी हाँ, फ़िदिया अदा करने की क्या करे? वसीयत करे। किसी को वसीयत कर दे कि मेरा फ़िदिया निकाल दे। आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। चुनांचा सैयद आला हज़रत मुजद्दिदीन व मिल्लत फ़तवा रिज़विया शरीफ में फ़रमाते हैं, बाज़ जाहिलों ने यह ख़याल कर लिया है कि रोज़ा का फ़िदिया हर शख्स के लिए जायज़ है। जी हाँ, आजकल हर कोई सोचता है कि हम रोज़ा छूट गया तो उसका फ़िदिया अदा कर दें। नहीं, जबकि रोज़े में उसे कुछ तकलीफ़ हो। जी हाँ, रोज़े में उसे तकलीफ़ हो, ऐसा हरगिज़ नहीं। फ़िदिया सिर्फ़ शेख फ़ानी के लिए। फ़िदिया किसके लिए है? सिर्फ़ शेख फ़ानी के लिए रखा है जो बेसबब पीराना साली हकीकतन रोज़ा की कुदरत न रखता हो। जी हाँ, उससे रोज़ा ही नहीं हो सकता हो, ना आइंदा ताकत की उम्मीद के उम्र जितनी बढ़े। जी हाँ, और आइंदा इतनी भी ना हो कि आगे उम्र बढ़े तो बाद में रोज़ा रख सके, ऐसे लोगों के लिए है। गी ज़ईफ़ बढ़ेगा उसके लिए फ़िदिया का हुक्म है। और जो शख्स रोज़ा खुद रख सकता हो और ऐसा मरीज़ नहीं जिसके मर्ज़ को रोज़ा मज़र हो। जी हाँ, जो तंदुरुस्त हो और रोज़ा भी रख सकता हो, उस पर ख़ुद रोज़ा रखना फ़र्ज है। क्या है? फ़र्ज है। अगरचे तकलीफ़ हो, भूख प्यास गर्मी खुश्की की तकलीफ़, तो गोया लाजिम रोज़ा है। जी हाँ, क्या है? लाजिम है। और इसी हिकमत के लिए रोज़ा का हुक्म फरमाया गया है। उसके डर से अगर रोज़ा न रखने की इजाज़त हो तो मुआद अल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़े का हुक्म ही बेकार व मुअत्तल हो जाएगा। एक और जगह फरमाते हैं, जिस जवान या बूढ़े को किसी बीमारी के सबब ऐसा ज़ईफ़ हो के रोज़ा नहीं रख सकते, उन्हें भी कफ़ारा देने की इजाज़त नहीं। जी हाँ, उन्हें भी क्या है? कफ़ारा देने की इजाज़त नहीं, बल्कि बीमारी जाने का इंतज़ार करे। जी हाँ, बीमारी जाने का क्या करे? इंतज़ार करे। अगर क़ब्ले शिफा मौत आ जाए तो उस वक्त कफ़ारा की वसीयत कर दे। हाँ, उस वक्त क्या करे? किसी को वसीयत कर दे कि मेरा कफ़ारा रोज़े का निकाल दे। गर्ज यह है कि कफ़ारा उस वक्त है कि रोज़ा न गर्मी में रख सके, न जाड़े में, न लगातार, न मुतफरिक। और जिस उज़्र के सबब ताकत न हो, उस उज़्र के जाने की उम्मीद न हो, जैसे वह बूढ़ा के बुढ़ापे ने उसे ऐसा ज़ईफ़ कर दिया कि रोज़े मुतफरिक करके जाड़े में भी
नहीं रख सकता। जी हाँ, रोज़ा क्या करे, सर्दी के समय अलग अलग रोज़ा छोड़ छोड़ कर भी नहीं रख सकता हो, उसके लिए है। तो बुढ़ापा तो जाने की चीज़ नहीं। जी हाँ, बुढ़ापा तो जाने की चीज़ नहीं, ऐसे शख्स को कफ़ारा का हुक्म है। ऐसे शख्स को कफ़ारे का क्या है, हुक्म है। ऐसे मरीज़ के लिए फ़िदिया मुस्तहब होने की सूरत बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर वाकई किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिसे रोज़ा से ज़रर पहुँचता है तो ताहुसूल सेहत उसे रोज़ा कज़ा करने की इजाज़त है। जी हाँ, उसे परेशानी होती है रोज़ा रखने में तो उसे कज़ा करने की क्या है, इजाज़त है। उसके बदले अगर मिस्कीन को खाना दे तो मुस्तहब है। मिस्कीन को खाना क्या दे तो क्या है, मुस्तहब है, सवाब है। क्या है, सवाब है। जबकि उसे रोज़ा का बदला न समझे, उसका रोज़े का बदला क्या करे, न समझे, और सच्चे दिल से नियत रखे कि जब सेहत पाएगा जितने रोज़े कज़ा हुए हैं अदा करेगा। जी हाँ, जब उसका सेहत अच्छा हो जाए तो उन रोज़ों को कज़ा करेगा, कज़ा हुए हैं उसको क्या करे, अदा करेगा। लिहाजा सूरत मुस्तफ़सिरा में मज़कूरा शख्स के लिए रोज़ा रखना अगर बाअसे ज़रर नहीं, जी परेशानी नहीं, कि रोज़े रखना फ़र्ज और छोड़ देने की सूरत में शदीद गुनाह और उनकी क़ज़ा करना लाजिम होगा। जी हाँ, और अगर रोज़ा बाअसे ज़रर है, हाँ मुश्किल है, परेशानी हाल में है, तो फ़ी इलहाल रोज़े तर्क करके बीमारी चले जाने की सूरत में उन रोज़ों की क़ज़ा करना लाजिम होगा। जी हाँ, बीमारी चले जाने के बाद उनकी क़ज़ा करना लाजिम होगा। उनके बदले में फ़िदिया देने से फ़िदिया अदा न होगा। जी हाँ, जो भी भाई बहनों के पास ये वीडियो जाए वो दूसरों तक पहुँचाए, जिससे आपको भी बहुत सारे सवाब का हक़दार उसमें मिल जाए, आपको भी बहुत सारे सवाब कमाने का मौका मिल जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। वल्लाहु आलम अज़्ज़ व जल व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।